امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم مسائل پر براہ راست بات چیت کے حق میں ہے۔ امریکہ کسی دوسرے ملک کے کسی انتخابی امیدوار کی حمایت نہیں کرتا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان سے متعلق سوال پر جواب۔ میں آپ کو دیتا ہوں سر، تشریف I will tear up your bill. میں رول کے مطابق کارروائی کروں گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل دوبارہ سینٹ میں پیش، اپوزیشن کا شدید احتجاج، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور لیگی سینیٹر عفنان اللہ کی بھی بھرپور مخالفت۔ شور شرابے کے باعث چیئرمین سینٹ نے بل کا متعلقہ قائمہ کمیٹی کو واپس بھجوا دیا۔ بل کے مطابق کوئی شخص جو جان بوجھ کر امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ممنوعہ جگہ پر حملہ کرتا یا نقصان پہنچاتا ہے، جو براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا بھی مجرم ہوگا۔ حکومت بل قومی اسمبلی سے منظور کرا چکی۔ اسحاق ڈار کا پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بل 2023 سینٹ سے منظور۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی اپنی قیادت پر برس پڑے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں، کہا مجھے لگتا ہے کہ میں سینٹ میں نہیں بلکہ کسی راج باڑے میں آ گیا ہوں، میں 9 دن سے ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں شہید بھٹو کی میراث سے ہوں، انہوں نے یو این قرارداد پھاڑی تھی، میں یہ بل پھاڑ رہا ہوں۔ شہید بھٹو نے یو این میں کہا تھا کہ وہ ٹائم ضائع کر رہے، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی یہاں پر ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد، چیف جسٹس نے عمر بندیال کی سربراہی میں قائم لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں، اس وقت جو کچھ ہو رہا تاریخ سب کچھ دیکھ رہی ہے، ہمیں تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، اپنا کام جاری رکھیں گے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کرے گی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا فوجی عدالتیں قانون کے تحت بنی لیکن آئین کے آرٹیکل 175 سے مستثنا ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے اگر یہ بات ہے تو کیا درخواست گزاروں کا استدلال درست نہیں ہو جاتا؟ بنیادی حقوق تو پھر آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالتیں ہی دیکھیں گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا اپیل کے حق سے متعلق جی ایچ کیو سے مزید بات کروں گا۔ دہشت گردوں کو واپس لانے والے قوم سے معافی مانگے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا کیوں ان کو واپس لایا گیا اور معاہدہ کیا گیا، ایسا واقعہ اگر ہماری حکومت میں ہوتا تو اپنی قیادت سے ضرور پوچھتا۔ دہشت گردی کے معاملے پر ہمیں خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں کب کیا ہوا۔ سانحہ آرمی پبلک سکول کے بعد قومی لائحہ عمل بنایا گیا، بدقسمتی سے دہشت گردی کے واقعات پھر سے سر اٹھانے لگے ہیں، باجوڑ میں دل خراش واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف نہ مل سکا، توشہ خانہ کیس میں فوری ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن حکام کل طلب، متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا جو ریلیف آپ نے مانگا وہ ہم نے دے دیا تھا، آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی تھی، پھر بھی ہم نے سنا اور آرڈر دیا، حیرت ہے آپ نے پھر بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ خواجہ حارث نے کہا ہائی کورٹ نے حکم امتناع نہیں دیا اس لیے سپریم کورٹ آئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہو سکتا ہے جو ریلیف آپ مانگ رہے ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کر دے۔ کیس کی سماعت 4 اگست تک ملتوی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں گواہان کی فراہم کی جانے والی فہرست مسترد کر دی۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس میں کہا سابق وزیراعظم کے وکیل گواہان اس کیس سے تعلق قائم کرنے میں ناکام رہے، کیس کی 34 سماعتیں کر چکا ہوں، چیئرمین پی ٹی آئی صرف 3 بار پیش ہوئے، عدالت نے فریقین کو حتمی دلائل کے لیے آج طلب کر لیا، فریقین حتمی دلائل نہیں دیتے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جائے گا۔ نگران وزیراعظم کے تقرر کے لیے شہباز شریف کا آصف زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، نگران وزیراعظم کے لیے مجوزہ ناموں اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت، آئین اور قانون کے مطابق نگران وزیراعظم کے تقرر کا عمل مکمل کرنے پر اتفاق، قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کی صدارت میں اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کے اجلاس کا امکان۔
इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे। आपको याददहानियों के नोटिस जारी किए। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया। अब मजीद तौसील नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान समेत 13 अरकान भी पार्टी से फारिग। रमेश कुमार वांकमानी, नज़र पठान, वजीहा कमर, रियाज महमूद खान मिजारी, राना मोहम्मद कासिम नून भी पार्टी से निकाल दिए गए। नवाब शेर, बासित अहमद सुल्तान, अफजल खान ढांडला, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भट्टो, आमिर तलाल गोपांग और अहमद हुसैन ढेडर भी पार्टी से आउट। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। मुश्किल हालात में तुर्की की मुआवनत को नहीं भूल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। PNS तारक की पाक बहरिया बेड़े में शमूलियत से समुद्री दिफा मजबूत होगा। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किया के नायब सदर सादिक यलमाज ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे। तुर्की और पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। ये आलमी अमन के लिए खतरा है। मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजीद अहमियत हासिल कर गए। धड़ाधड़ बिल मंजूर, 3 दिन में 54 बिल मंजूर हो चुके। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम। 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। गुज़श्ता रोज भी कौमी असम्बली से 6 बिल पास करवाए गए। पैमरा तरमीमी बिल 2023 भी ईवान से मंजूर। हुकूमत की जानिब से मंजूर कराए गए 54 बिलों में से 35 निजी यूनिवर्सिटीज के क़याम से मुताल्लिक हैं। फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफी के फैसलों ने 2022 तक इस नहज तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा, गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस चुकी। मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका मिला तो इंशाअल्लाह 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म की तलाल चौधरी नाअहली खत्म होने पर मुबारकबाद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। हमारे ताल्लुकात हमारे इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुबारकबाद पेश करते हैं। चीनी नाज़िमुल उमूर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 46वीं सालगिरह के मौका पर तकरीब की मेज़बानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज कर दिया। अस्कर क़यादत के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौजी क़यादत का खैर मकदम किया। फोर्सेज और सरबराहान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सत्ताइश है। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हुकूमत और अफवाज मिलकर काम कर रहे। CSFC में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सत्ताइश है। इंशाअल्लाह जल्द मुल्क मुआशी बहरान से निकल आएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुझे किस केस का रिकॉर्ड नहीं मिला। वकील, चेयरमैन PTI का मौक़िफ़, सितंबर की तारीख देने की इस्तदा। कमर अदालत में असद उमर और फैसल चौधरी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। फैसल चौधरी ने कहा, आप जवाब जमा करवा के जान छुड़ाएं। असद उमर बोले, एक केस हो तो जवाब दें, 31 केस और भी हैं, किस किस से जान छुड़ाएं। असद उमर के जवाब पर दोनों का जोरदार कहा। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की 5 सालाना अहली की मुद्दत खत्म। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कभी अदालत की तौहीन की ना ऐसा सोचा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जजेस ने मुझे नवाज शरीफ से वफादारी का सर्टिफिकेट दिया। मुझे नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। नून लीगी रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया।
मैं अब सियासत में हिस्सा ले सकता हूं, लेकिन साकिब निसार अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मरियम औरंगजेब की मुबारकबाद। कहा, तलाल चौधरी अपने ज़मीर ही नहीं बल्कि वक्त और अवाम की अदालत में भी सुरखरू हो चुके। नाहक सजा देने वाले अवाम और तारीख की अदालत में ताहयात नाअहल हो चुके। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, अब वही अदालतें इन्हें सुरखरू कर रही। मरियम औरंगजेब ने कहा, हमारे कारकुन नवाज शरीफ के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डाल दिया। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क को तबाह किया। IMF से मुआहदा तोड़ा। नारे लगाते थे कि हर इदारे को नीलाम कर दो। चेयरमैन पीटीआई मुल्क में महंगाई बर्पा करके मुल्क की दुश्मन करते चले गए। साजिश के तहत पाकिस्तान की तरक्की और CPEC को भी रोका गया। बाईस अगस्त तक इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक बड़ी जमात के खिलाफ केसेस से अच्छा तासुर नहीं जाएगा। हम तो केस निपटाना चाहते हैं। असद उमर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने जो बातें की वो तनकीद हैं, तौहीन के जुमरे में नहीं आती। तौहीन पर कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हासिल है। पाकिस्तान में महंगाई कम होने के अंदाजे गलत हैं। महंगाई मजीद बढ़ेगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। माहिरीन ने कहा, IMF मुआहदे के बायस बिजली गैस महंगी करना लाजमी होगा, जो महंगाई बढ़ाने की वजह बनेंगे। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया तकरीबन 40% की शरह से महंगी हो रही। दरामदात पर पाबंदी हटाने से खुराक की सप्लाई बेहतर होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और ओगरा समेत दीगर हुक्काम को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही, पाकिस्तान में इजाफा कर दिया गया। मुल्क में पेट्रोलियम कीमतों के तयन को कोई निज़ाम नहीं बदल सकता। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कीमतों में इजाफा कलअदम करार दिया जाए। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर से खिताब। कहा, सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में हर तरफ मायूसी फैली हुई है, जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। सर्विसेज अस्पताल की खराब हालत पर इंतहाई दुख हुआ। डॉक्टर्स नहीं बल्कि हुकूमत जिम्मेदार है। मैं तो किसी दुश्मन को भी सर्विस अस्पताल नहीं भेजूं। हमारी कोशिश है कि अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। निगरान हुकूमत को ओहदे से हटाने, मुअत्तल करने या शोकाज नोटिस देने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी भिजवाया गया शोकाज नोटिस मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। इनकलाबी तौर पर आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यह निहायत अहम दिन है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम काम किया है। 14 यूनिट्स का इजाफा किया जा रहा। इससे पहले 26 यूनिट्स सूबे के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं। इन यूनिट्स की तादाद 40 हो गई। बड़ी बड़ी बीमारियों का सिंध हुकूमत मुफ्त इलाज कर रही है। वज़ीर इत्तलात का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। K4 मंसूबे की खरीदारी को सिंध सेल्स टैक्सेस से मुस्तस्ना की मंजूरी दे दी गई। वापटा के K4 2024 में मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत को 14 अरब रुपए सेल्स टैक्सेस देने होंगे। इजलास में घोटकी कंदकोट ब्रिज के लिए सिंध हुकूमत ने 5 अरब रुपए देने की भी मंजूरी दे दी। परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर। गिरफ्तारी पर पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। हुकूमती अपील पर मजीद कार्रवाई 7 अगस्त को होगी। परवेज इलाही के वकील की हुकूमती अपील को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद जुडिशल एकेडमी के इंतजामी अफसरान के खिलाफ भी महंगाना कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद की अदालत ने मरकजी मुलजिमा तौमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली थी। तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत में मामूली बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस लेने में दुश्वारी के बायस हालत तशवीशनाक हो जाती है।
3-4 दिन हालत ठीक रही तो रिजवाना रिकवरी के फेज में दाखिल हो जाएगी। दरिया सतलुज में फिर से तोग़यानी, जमींदारा बंद टूट गया, मुल्क इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता, लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी गई। एमरजेंसी नाफिज, कसूर के मकाम पर भी दरिया सतलुज से मुल्क इलाकों में एक बार फिर से सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता, 20 से ज़ायद देहात में जानवरों के चारे की किल्लत, किसान ज़िले इंतज़ामिया की राह तकने लगे। अहम शाहराहें पानी में बह जाने और कई फीट पानी जमा हो जाने से इलाका मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात। पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई, इंतजामिया अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 7 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कश्ती में दरिया अबूर करने, दरिया में आमदरफ्त और तैराकी पर भी पाबंदी आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराक़ी हममनसब से मुलाकात। इराक़ का अरबाइन के दौरान पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 1 लाख करने का फैसला। पाकिस्तानी ज़ायरीन को ग्रुप वीज़े के अलावा इनफरादी वीज़ा जारी करने की भी मंजूरी। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस में कमी की भी यकीन दहानी करा दी गई। पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है, इराक़ी वज़ीर दाखिला का बयान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान तजारत में तारीख रकम। माल बरदार ट्रक काज़ाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक सेल पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान तजारत को महफूज तरीके से यकीनी बनाएगी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राह चलती लड़की से नाजेबा हरकत का एक और संगीन वाकया। सफेद टोपी पहने मोटरसाइकिल सवार शख्स बुर्का पोश खातून के साथ नाजेबा हरकत के बाद फरार हो गया। कराची में 1 माह के दौरान राह चलती खवातीन के साथ गैर इखलाकी हरकतों का ये तीसरा वाकया है। मुतासरा लड़कियों के अहले खाना और अहले इलाका का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कोयटा में 2 ग्रुपों में फायरिंग। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी का भतीजा मुहाफिज समेत कत्ल। कबायली रहनुमा के बेटे बरहमद लहड़ी भी जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। कोयटा में स्पिनी रोड पर धमाका, हमलावर हल्लाक। धमाका खेज मवाद ले जाने वाले मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त हो चुकी। तर्जुमान सिटी के मुताबिक मशकूक शख्स धमाका खेज मवाद ले जा रहा था जो रास्ते में ही फट गया। सदारती इलेक्शन पर पुरअसर अंदाज होने, कैपिटल हिल पर हमले के इल्जाम में ट्रंप पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद। ट्रंप पर कार्य सरकार में मुदाखलत की कोशिश और अमेरिका को धोखा देने की साजिश का इल्जाम। ट्रंप ने फर्द जुर्म को जाली करार दे दिया, कहा यह 2024 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अपनी अहलिया सूफी से अलहदगी का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अलहदगी का ऐलान सोशल मीडिया से किया।